आप सबको जय मसीह की. Praise the Lord. Hallelujah. And today I am again on this Agra Masih Mandli page. I am so fortunate and it is God's blessing that I could come today, and I am well and I have come back from Punjab safely, and I want to thank God and I want to thank you also because you all have praying for me. You have been praying for me, and I expected to reach at 11, but I reached at 1 a.m. in the night. But there was no problem at all. I came home at that time alone, and God was with me throughout. His angels encamped me and surrounded me, so I reached home safely. So before starting our service, let us pray. Dear gracious, loving Heavenly Father, we come into Thy presence. We praise You and thank You for this wonderful evening, for this beautiful time You have given us. Thank You, Lord. You are always with us and You always protect us, and Your angels are always around us, and You go before us and behind us. Dear Heavenly Father, we have so much privilege to be Your children and to be in Your presence, to be in Your safety. Dear Heavenly Father, we thank You for our life, that You have kept us alive on this earth. Thank You for all the blessings You have given us. Thank You for our family. Thank You for all the provisions You have given. And we now commit this service into Thy hands, Lord. Holy Spirit, please take charge of it, and those who are going to watch it, bless them immensely. And Father, I pray for Brother Anupam and Shabnamji. Bless them also abundantly. And now I ask this prayer in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, सबसे पहले as usual, we will sing a song, and then we will go into the presence, into the word. So let us sing the song. You must be knowing this song because before also I have sung this song so many times. मैंने पहले भी ये गाना कई बार गाया है, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद आएगा. I hope so. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में. जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया चरण का स्थान है मेरा. वैसे ही तेरी छाया शरण का स्थान है मेरे. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में. वादा जो तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा जो तूने किया छोड़े न कभी मुझे. खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने.
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, है यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। परमेश्वर हमें हमेशा संभालता है, और हम जो भी काम करते हैं, हम कोई कठिन काम करने जाते हैं तो हमको हमेशा प्रभु से ये कहना चाहिए कि संभाल प्रभु जी, इस पल में भी हमें संभाल, क्योंकि उसके संभालने से ही हमको हर जगह सुरक्षा मिलती है और सफलता मिलती है। तो प्रभु हमारा जो है वो सहायक है और हमारी रक्षा करने वाला है। इस तरह ये मेरी भी गवाही है कि जब मैं पंजाब से आ रही थी तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक अम्बाला सिटी है, रास्ते में अम्बाला सिटी पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही थी और किसानों ने वहाँ पे ज़्यादा ही आंदोलन कर रखा था और वहाँ पे गोलियाँ भी चली थी। एक पुलिस की डेथ हुई थी और एक किसान की भी डेथ हो चुकी थी, जो कि मेरे सुनने में आया था। तो मुझे डर था कि कहीं ये ट्रेन को ना रोक दें और ऐसा ना हो कि वो धरना दे के ट्रेन के सामने बैठ जाएं। लेकिन कुछ प्रभु की इतनी दया थी कि उस ट्रेन को किसी ने नहीं रोका और हम सुरक्षित घर पे आ गए। इवन 2 घंटे लेट आए, लेकिन प्रभु ने सही सलामत घर पे पहुंचाया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक और गीत हम गाएंगे। When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds our way. We do His good will, He abides us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, nor a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey,
for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What a beautiful song it is. And when we keep trusting the Lord and when we obey Him all the time, that is the biggest sacrifice we can give to the Lord. That's the biggest present we can give to the Lord, because Lord is always happy with our obedience. He doesn't want big gifts because He has everything and He has given us all the gifts. But when we obey Him, that is the biggest sacrifice for Him and the biggest joy for the Lord. So praise God for this and hallelujah. तो आइए हम वचन में चलेंगे, और वचन में जाने से पहले एक बाइबल का एक पोर्शन में पढ़ूंगी। और आज का जो टॉपिक है, पहले मैं बता देती हूँ, आज का टॉपिक है जेलिसी। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि जेलिसी एज क्रूएल एज ग्रेव। जेलिसी इज एज क्रूएल एज ग्रेव। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जेलिसी कैसा वाला इमोशन है। और जेलिसी एक अच्छा इमोशन नहीं माना जाता है, क्योंकि जेलिसी से जो परिणाम होते हैं वो बुरे होते हैं। जेलिसी के परिणाम जो जलन होती है, जो ईर्ष्या होती है, और उससे जितने भी परिणाम हैं वो अच्छे नहीं बल्कि बुरे होते हैं। और कुछ बातों में ज़रूर है कि इसके परिणाम अच्छे भी होते हैं, बट वो रेयर हैं और वो बहुत ही कम हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जेलिसी एक इमोशन है, ये एक फीलिंग है। तो इसके बारे में पहले हम जेनेसिस 4:3-9 पढ़ेंगे। जेनेसिस 4:3-9। One day Cain gave part of his harvest to the Lord, and Abel also gave his offering to the Lord. He killed the firstborn lamb from one of his sheep and gave the Lord the best parts of it. The Lord was pleased with Abel's offering, but not with Cain's offering. So we have seen here in the Bible that there were two brothers, and they were the sons of Adam and Eve, and they were doing their work. They were working. So Cain was working in the fields. He was with the farming, and Abel was working with the sheep. He was a shepherd for the sheep. And one day they gave offering to the Lord, and Cain gave the offering, but God did not accept his offering. But Abel, whatever he gave to the Lord, the Lord accepted his offering. Why? Both of them have given the offering, but there is a difference in their attitude. Because Cain gave the offering to the Lord, whatever was left out, he did not give it, wholeheartedly. The brother Abel, he used to love the Lord like anything, and he gave the best offering to the Lord. He chose the best sheep from his sheepfold, and he took the best lamb from there, and whatever was the best portion of the lamb, he gave it to the Lord, and that's why Lord accepted his offering. So we have seen that the attitude matters. When we give it wholeheartedly, when we give with joy, whatever we give it to the Lord feels happy. The Lord accepts that. But when our attitude is not good, then Lord does not accept. Whatever it may be, God accepts when we give it with joy and with sincerity to Him. So God wants to see joy and sincerity in our offering, whatever we give Him, whether it is our talent, whether it is our money in the church, whether it is feeding the poor people or giving water to the thirsty. But God wants to see our attitude, with what attitude we are doing it. And then
here we see that after the Lord accepted Abel's offering, Cain became very, very jealous. He became jealous, and what he did, he went to Abel and he killed him. And when he killed him, जब वो मर गया तो क्या हुआ कि गॉड को तो पता होता है, गॉड को सब कुछ पता चल गया, परमेश्वर को पता लग गया कि केन ने एबल को मार डाला है। और जब गॉड परमेश्वर आए तो उन्होंने पूछा केन से कि तेरा भाई कहाँ पर है। तो केन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो कितना रूड आंसर उसने दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। जबकि भाई बहनों में कितना प्यार होता है और सब एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। और यहाँ तो केन का बस एक ही ब्रदर था, फिर भी उसने ऐसा शब्द कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। और वो गॉड ने कहा कि एबल का खून पुकार पुकार के दुहाई देकर मुझे बुला रहा है, और मुझे पता है कि तूने अपने भाई को मार दिया है। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन आई डिडंट वांट टू रीड एवरीथिंग, फिर बहुत समय लग जाता है। पर ये इसका सारांश है कि गॉड ने उसके बाद इसको केन को एक श्राप दिया, और उन्होंने कहा कि आज के बाद से तू हमेशा क्या होगा, एक भगौड़े के समान रहेगा, और एक जगह तू टिक कर कभी नहीं रहेगा, और तेरी फसल में से जो है जो पूरा फायदा तुझे होना चाहिए वो नहीं होगा। तेरी फसल में बरकत नहीं होगी, ब्लेसिंग नहीं होगी, और तू हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे भागता ही रहेगा। तो इस तरह से जब केन ने सुना तो उसको बहुत बुरा लगा, और उसको बहुत ही पछतावा तो हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो पूरे जीवन भर भागता रहा इधर से उधर। ये गॉड का, परमेश्वर का श्राप था उसके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जेलेसी है, ये एक बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये जेलेसी हो सकती है, और छोटे बच्चों में भी ये जेलेसी होती है। और ये जेलेसी क्या करती है, ये हमारे अंदर कहाँ से उत्पन्न होती है, ये हमारे अंदर शक से और गुस्से से और डर से उत्पन्न होती है, और ये हमको कहाँ ले जाती है, एक हमें नीचा दिखाने की परिस्थिति में ले जाती है। तो जेलसी जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, और हम नॉर्मली अगर देखें तो छोटे बच्चों में भी जेलसी होती है। जैसे कि दो बच्चे हैं, एक 2.5 साल का है और एक अभी नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है, और माँ जो है वो छोटे बच्चे को छोड़ के चली जाती है। तो ये मिस किचन में कोई काम वाम करने चली जाती है, तो ये जो बड़ा वाला बच्चा होता है ये उसको थप्पड़ मारता है और उसको नोचता है, क्योंकि उसको पता है कि इस छोटे वाले के आने से मेरा जो माँ से अटेंशन मुझे मिलता था वो कम हो गया है, और वो अंदर ही अंदर अपने छोटे वाले ब्रदर से या सिस्टर से जलने लगता है। और जब माँ या बाप नहीं देख रहे होते हैं तो वो उसको मारना चाहता है और मारता है, और छोटा बच्चा रोने लगता है कि से, तो उसकी माँ आती है, देखती कि क्या हो गया मेरे छोटे बेबी को, ये क्यों रो रहा है। पर उसको, और ये बड़ा बच्चा जो बड़ा भोला बन के बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये होता है जेलेसी, जो कि हमें जन्म से ही हमारे अंदर होती है। और ये जेलेसी जो है ना केवल छोटे बच्चों में, पर ये बड़ों में भी होती है। फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज द जेलेसी रिमेन्स इन द पर्सन। और सबसे ज़्यादा हम ये जेलेसी कहाँ देखते हैं, हस्बैंड वाइफ में देखते हैं। जब हस्बैंड वाइफ जो है एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर कोई और पार्टनर या कोई और स्त्री या कोई और पुरुष अगर उनके स्पाउस को देखता है या ज़्यादा बात करता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो जो है गुस्से में अपने स्पाउस को बाद में कहते हैं कि तुम इससे बात नहीं करोगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है।
तो इस तरह से जो है वो जेलिसी का ही परिणाम है कि हम अपने स्पाउस को किसी और से बात करते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि गॉड ने ये वाला इमोशन हमको इसलिए दिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है एक दूसरे से जुड़े रहें, और वो एक दूसरे के रास्ते जब उनके थोड़े से बिगड़ने लगते हैं तो वो एक दूसरे को संभाल लें। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जो हस्बैंड है वो घर में अपनी वाइफ को जो है इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, लेकिन बाहर की लड़कियों को, बाहर की स्त्रियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। तो इन दैट केस क्या होता है कि वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगती है, एंड वाइस वर्सा इट हैपन्स टू द हस्बैंड ऑल्सो। अगर उसकी वाइफ ज़्यादा किसी से बात करती है या ज़्यादा लगाव व्यक्त करती है तो हस्बैंड को ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो इतना तक जो पॉजिटिवनेस होना सही है, बट इससे ज़्यादा अगर होता है कि घर में झगड़े होने लगते हैं और लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और फिर क्या होता है कि संबंध विच्छेद तक बात आ जाती है, और लड़की जो है अपने मायके चली जाती है, लड़का उसको लेने नहीं जाता है, या कभी लेने जाता है तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस हद तक जेलसी नहीं पहुंचनी चाहिए कि रिलेशनशिप ही जो है वो चेंज हो जाए और रिलेशनशिप बिल्कुल बिगड़ जाए। तो हमने देखा कि जेलसी क्या चीज़ है, और जेलसी जो है वो एज वाइज किसी भी एज में हो सकती है, और ये जेलसी जो है भाई बहन में भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है, और जेलसी कैन बी इन एनी स्टूडेंट ऑल्सो। अगर एक स्टूडेंट जो है वो अच्छा पढ़ता है तो दूसरे स्टूडेंट्स उससे जेलसी करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो उस स्टूडेंट को जो कि क्लेवर है, जो कि इंटेलिजेंट है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो जेलसी के एक साइड में अच्छी चीज़ें हैं और एक पलड़े में बुरी चीज़ें भी हैं। तो हमने देखा केन और एबल की लाइफ से कि जेलसी ने क्या किया, जान तक ले ली। तो दैट्स वाई जेलसी इज एज क्रूएल एज ग्रेव। तो इसलिए जेलसी को हम क्रूएल कहते हैं, एज क्रूएल एज ग्रेव। जैसे कब्र क्रूएल होती है और वो अपने अंदर एक मरे हुए व्यक्ति को रखती है, उसी तरह से जेलसी जो है वो बहुत ही क्रूएल होती है। तो मेरे प्रियो, हमें ये जेलसी नहीं करनी चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। इवन दो इट्स नॉट ईजी, बट वी शुड प्रे टू गॉड not to give us jealousy, and when we feel jealous about somebody, then we should ask God to give us self-control, so this jealousy may not go to the extreme of the emotions or acts. अगर हम वचन में देखें तो जोब 5:2 में क्या लिखा हुआ है, अय्यूब 5:2, यस 5:22 है, नो 5:2 है, क्योंकि मूड तो खेद करते करते नाश हो जाता है और भोला जलते जलते मर जाता है। तो एक जो मूड व्यक्ति होता है, मीन्स व्यक्ति जो कि फुलिश है, वो क्या करता है, वो खेद करते करते, दुख करते करते मर जाता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और हमारे पड़ोसियों के पास तो ये है, वो है, और उनके पास अच्छा घर है, नहीं, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। एंड वो कहते हैं कि मूड जो है, जो व्यक्ति बुद्धू होता है और फुलिश होता है, वो क्या करता है, वो खेद करते करते नाश हो जाता है, और जो भोला व्यक्ति है वो जलते जलते मर जाता है। भोला व्यक्ति मीन्स बहुत ही कुछ लोग इनोसेंट होते हैं मीन्स, और वो सोचते हैं कि इस लोगों के पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, और परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं ये सब चीज़ें दी, और वो इस तरह से कुढ़ता रहता है, अंदर कुढ़ता रहता है, और कुढ़ते कुढ़ते जो है वो मर जाता है। क्योंकि कुढ़ते रहने से क्या होता है कि अपने स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, और जो हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है। क्योंकि हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं कि जो इम्यूनिटी है
इम्यूनिटी उन ये हमारे शरीर में नेचुरल रूप से होती है। लेकिन जब हम कुढ़ते हैं, जब हम किसी से जेलसी करते हैं और जब हम मन में बुरे एटीट्यूड रखते हैं या हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। और जब कम हो जाती तो तरह तरह की बीमारियां हमको लगने लगती हैं। तो ये होता है इसका परिणाम, जेलसी का परिणाम ये होता है कि हम जो है वो बीमार पड़ने लगते हैं। फिर साम 49 और वर्स 16, साम 49 वर्स 16 में लिखा है, जब कोई धनी हो जाए और उसका वैभव बढ़ जाए, मन तब तू भय ना खाना। यस, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो वैभवशाली हो जाए, उसके पास बहुत धन हो जाए, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएं और वो व्यक्ति इस लायक नहीं है, सपोज वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसके पास फिर भी सब कुछ है, तो ऐसा होने पर तू मन में मत कुढ़ना। ऐसे लिखा है साम 49:16 में, जब कोई धनी हो जाए और उसका वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। ये मत सोचना कि अब तो ये धनी हो गया है, इसके पास सब कुछ है, ये अब तो मेरे अगेंस्ट, मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, इसके पास पिस्टल भी होगी, अगर मैं इसको कुछ कहूँगा तो ये मैं जान से मुझे मार भी सकता है। क्योंकि दिल्ली में ऐसे होता है कि अगर किसी की कार किसी से लड़ जाती है तो वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और किसी व्यक्ति की साइकिल किसी कार से थोड़ी सी लड़ जाती है, उसको खरोच आ जाती है, तो वो जो व्यक्ति होता है कार में वो अपनी बंदूक लेके निकल आता है और उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक भौतिक वस्तु के लिए, एक फिजिकल चीज़ के लिए इंसान जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेलिसी जो है वो घमंड से भी आती है और गुस्से से आती है। शुरू में हमने बताया कि जेलिसी जो है शक, गुस्से और घमंड से आती है। और ये वाला हादसा देखने से सुनने के बाद मैंने सबको कहा कि देखो भाई, तुम लोग किसी से झगड़ा मत करना, अगर कोई तुमको 4 बातें सुनाता है तो तुम चुप से वहाँ से निकल जाना और उसका जवाब मत देना, क्योंकि हमारी जो भलाई इसी में है। और इस तरह से क्या होता है कि वो व्यक्ति किसी तरह से बाय गॉड्स ग्रेस बच जाता है और चला जाता है। और जो लोग ईर्ष्या करते हैं, जो लोग जेलसी करते हैं, उनको हानि होती है। एक तो हानि ये होती है कि उनकी पर्सनैलिटी ही खराब हो जाती है। जो व्यक्ति जेलसी करते हैं, आप उनके चेहरे देख सकते हैं, उनके चेहरों से ही पता लग जाता है, उनकी आंखों से पता लग जाता है कि ये पर्सन जो है वो जेलस है। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग जो हैं, कुछ लोग तो मुंह पर वाह वाह कहते हैं लेकिन मन में उनके जेलसी होती है और उनकी आंखों से आप देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है जेलस है। बहुत से लोग दुनिया में कहते हैं कि ये जो है जेलसी के कारण बच्चा बीमार हो गया या जेलसी के कारण इसको लूज मोशन लग गए। तो कुछ शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जेलसी के कारण ये हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो वही थ्योरी है कि अगर इंसान जेलस होगा तो क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। लेकिन ये बच्चा जो है अगर किसी से वो जेलसी कर रहे हैं तो उसका भी असर उसके ऊपर पड़ सकता है, जो जेलसी नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी पड़ सकता है। आपने देखा कि केन ने कैसे अपने भाई को मार डाला। और वहाँ पर हमने एक बात बतानी चाहिए थी आपको, जो मैं भूल गई। जहाँ पर केन ने अपने भाई को मारा था और ज़मीन के नीचे गाड़ दिया था, वहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर एक पेड़ है। ये मैंने कहीं पढ़ा था गूगल में कि वहाँ पर एक पेड़ है और उस पेड़ को अगर छीला जाए चाकू से या किसी भी चीज़ से छीला जाए तो उसमें से द्रव नहीं निकलता है, बल्कि क्या निकलता है, खून निकलता है। और ये उस बात की याद दिलाता है कि केन ने यहीं पर अपने भाई को मारकर ज़मीन में दबा दिया था। तो और आपने सुना था शुरू में कि परमेश्वर भी जब पूछते हैं केन से कि तेरा भाई कहाँ है, तो वो कहता है मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूँ। और परमेश्वर ने कहा था कि उसका लहू मुझे दुहाई दे दे के पुकार रहा है। तो उसका लहू
जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे क्रिश्चियनिटी में लहू बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों का लहू, जीसस का लहू। और इस तरह से हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम देखते हैं कि लहू की कितनी अहमियत होती है। फिर हम देखते हैं कि गलेशियन 5:26 में क्या लिखा है। गलेशियन 5:26 में लिखा है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से डाहा करें। मीन्स हम इतना घमंड ना करें कि हम एक दूसरे को छेड़ें। और जब कोई व्यक्ति जो है उसके पास बहुत कुछ हो जाता है और तो उसको लोग छेड़ने लगते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगता है, तो दूसरे स्टूडेंट्स उसको छेड़ने लगते हैं, उसको गुस्सा दिलाने लगते हैं, ताकि उसको गुस्सा आए, वो लड़ाई शुरू करे और वो उसके ऊपर हमला कर दें। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इसी जेलसी के कारण उस स्टूडेंट को मार तक डालते हैं, मीन्स उसको उसकी हत्या भी कर देते हैं। ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं। कोई अच्छा गायक होता है तो दूसरे गायक उसको उसका मर्डर कर देते हैं। तो ये जेलसी जो है इतनी खतरनाक होती है इन सब चीज़ों में। मतलब सांसारिक, अगर सांसारिक वे में आप लीजिए तो जेलसी बहुत ही खतरनाक है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। फिर जेम्स 3:12, जेम्स मीन्स जेम्स 3:12 में लिखा है कि जहाँ पर डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के कुकर्म भी होते हैं। तो जहाँ पे डाह मीन्स जेलसी, तो जहाँ पे जेलसी है और अपोजिशन है वहाँ पे तरह तरह के कुकर्म भी होते हैं। जैसे कि हमने इसमें कैन और एबल की कहानी में उसके किस्से में देखा कि वहाँ पर कैसे जेलसी हुई और जेलसी में उसने अपने भाई को मार डाला। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कुकर्म होते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने कहा है, जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। उन्होंने कहा है कि जो अपने आप में बिजी रहता है वो ईर्ष्या करने का समय नहीं पाता। मतलब जो लोग अपने आप में बिजी रहते हैं और वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाते हैं और वो लोग जो हैं अपने काम से ही मतलब रखते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है और वो इस बुराई से बचे रहते हैं। तो हमें अपने कामों में बिजी रहना चाहिए और इतना फालतू नहीं होना चाहिए कि हम जो है बुराई सोचें, दूसरों की निंदा करें और दूसरों के बारे में बुरा सोचें, उनको बद्दुआएं दें। तो हमारे पर जब टाइम ही नहीं रहेगा तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में हमेशा बिजी रहना चाहिए। और बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि जेलसी के बारे में बताते हैं। ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लूसीफर का एग्जाम्पल है। जब परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत ही खूबसूरत बनाया और उसके ऊपर मणि जी और सारे हीरे जवाहरात जड़ दिए और उसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे दिया, अपना ज्ञान भी वो परमेश्वर उसको दे देते थे, क्योंकि लूसीफर सब कुछ जानता था जो परमेश्वर के पास था। और परमेश्वर जो है जानता था कि लूसीफर जो है उसका पहला बेटा है। परमेश्वर उसको इतना प्यार करता था, लेकिन लूसीफर के मन में जेलसी आ गई। वो परमेश्वर से जलने लगा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसा करूं कि मैं परमेश्वर के बराबर बन जाऊं और परमेश्वर के बराबर मैं सिंहासन बना के बैठूं और पूरे दुनिया पे मैं प्रभुता करूं। और इस बात से क्या हुआ, परमेश्वर को तो सब कुछ पता होता है क्योंकि वो अंतर्यामी है। उसको जब ये बात महसूस हुई कि लूसीफर ऐसा सोच रहा है, तो उसने क्या किया, लूसीफर को ऊपर से नीचे गिरा दिया, मतलब स्वर्ग से उसको नीचे गिरा दिया। और उसके साथ साथ वही नहीं बल्कि 33% एंजल्स जो कि लूसीफर की तरफ थे वो भी गिरा दिए गए। तो वही लोग जो हैं आज दुनिया में शैतान का काम कर रहे हैं। लूसीफर सबसे बड़ा शैतान है और जो उसके दूसरे एंजल्स हैं, जो दूसरे लोग जो गिराए गए हैं, वो क्या हैं, उसकी
सेना है। तो ये सब मिल के प्लान बनाते रहते हैं कि हम किस व्यक्ति को जो है परमेश्वर के विरुद्ध करें और किस व्यक्ति से बुरे काम करवाएं, किस व्यक्ति के मन में जेलसी की भावना उत्पन्न करें और उससे बुरे बुरे काम कराएं। तो ये पहला एग्जाम्पल है जब दुनिया बनी ही थी, उसके बाद जो है लूसीफर का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ जो कि बहुत ही नेक लड़का था और उसके 11 भाई थे और वो जो है गॉड उसको परमेश्वर उसको आगे की बातें दिखाते थे, अच्छे अच्छे स्वप्न में जो भविष्यवाणियाँ वो उसको दिखाते थे। और वो जो है ऐसी बातें जब अपने माता पिता और भाइयों से कहता था तो वो उसको पसंद नहीं करते थे। और जो उनका पिता था वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने उसके लिए एक सुंदर सा कुर्ता बना के दिया जो कि और किसी को शायद उसने नहीं दिया होगा। तो ये 11 लड़के जो थे ये बहुत जल भुनकर बिल्कुल कोयला बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम इससे ज़रूर बदला लेंगे और उसको मारने के लिए वो सोचते हैं। लेकिन बाद में वो उसको क्या करते हैं कि एक काफिला जा रहा होता है और वो काफिले के हेड को इस लड़के को मतलब जोसेफ को बेच देते हैं। लेकिन वो भी उन जोसेफ के अच्छे के लिए हुआ, वो कहानी अलग आप जानते ही होंगे कि जोसेफ के साथ ये जो बुरा हादसा उसके बाद उसके भविष्य के लिए कितना अच्छा हुआ और उसके भाइयों ने ही उसके सामने सिजदा किया और माँ और उसके पिता भी आए और उसके सामने सिजदा नहीं किया होगा लेकिन वो उससे मदद मांगने आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जेलसी है वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। यहाँ भी मौत होते होते बच जाती है, हत्या होते होते बच जाती है, लेकिन वो उसको अपने माता पिता से बहुत दूर भेज देते हैं उसके भाई। उसके बाद हमने देखा कि बाइबल में एक और किस्सा है, वो है रेचल और लिया का। रेचल और लिया दोनों ही जेकब की पत्नियां थीं और ये दोनों बहनें भी थीं, लेकिन वो एक दूसरे से जेलसी करती थीं और वो जेलसी के कारण जेकब को क्या करती थी, तरह तरह के धतूरे और नशीले पदार्थ उसको देती थी। वो उनसे उसको नुकसान भी हो सकता था, ना कि उनको एक दूसरे से बल्कि उनके पति को ही नुकसान हो सकता था और वो मर भी सकता था। लेकिन उन्होंने जो है ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक दूसरे से जलती थी और दोनों ही चाहती थी कि ये जेकब मुझे ज़्यादा प्यार करे, दूसरी चाहती थी कि मुझे ज़्यादा प्यार करे। और यहाँ पर जेलसी का मेन कारण क्या था कि वो ये था कि लिया के पास तो ढेर सारे बच्चे थे लेकिन रेचल के पास एक भी बच्चा नहीं था। तो जो चीज़ लिया के पास थी वो रेचल के पास नहीं थी, इस कारण से जो है जेलिसी उसके अंदर पैदा हुई। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और दूसरे के पास होता है तब भी जेलिसी उत्पन्न हो जाती है। तो इस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। हमको परमेश्वर ने जो भी दिया है उससे हमें प्रसन्न रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। हमें दूसरों की ज़्यादा चीज़ें देख के कभी भी जेलसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें परमेश्वर ने दी हैं हो सकता है उन अमीर लोगों को ना दी हों। और सबसे आंकड़ा बताता है कि सबसे ज़्यादा मेंटल इलनेसेस जो हैं वो अमीर लोगों में होती हैं। और एक गरीब जो है वो सारे दिन मेहनत करता है और फिर रात को वो जहाँ भी लेटता है उसको गहरी नींद आ जाती है और वो बड़े चैन की नींद सोता है। उसको अपने रुपयों पैसों का, अपने धन दौलत का, अपनी गाड़ियों का कोई भी परवाह नहीं होती क्योंकि उसके पास वो चीज़ें हैं ही नहीं। लेकिन उसके पास सच्ची शांति है जो परमेश्वर ने उसको दी है। और जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके पास तो शांति ही शांति होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो उनको वो वाली शांति देता है जो ये दुनिया हमें नहीं दे सकती है। और ये सारे एग्ज़ाम्पल्स इतने अच्छे हैं कि मैं किसी भी एग्ज़ाम्पल को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और कुछ एग्ज़ाम्पल तो हमने जो है अपने ब्रदर के मैसेज से भी एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जब वो एब्सलोम के बारे में बता रहे थे लास्ट वेडनेसडे को।
अभी जो वेडनेसडे बीत गया उस दिन एब्सलोम जो है वो दाऊद का एक बेटा था, और उसने क्या किया था, एब्सलोम के पास बहुत ही सुंदरता से वो भरा हुआ था, उसके बाल सुनहरे थे और वो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ही हैंडसम व्यक्ति था। लेकिन उसके अंदर क्या था, दुष्टता भरी होती है, और वो दुष्टता इतनी भरी होती है कि वो अपने भाई का पहले कत्ल करता है, उसके बाद उसको अपने पिता से जेलसी होने लगती है कि मैं अपने पिता के समान जो हूँ एक राजा बन जाऊं और सारा धन संपत्ति और राज्य जो है वो मेरे साथ हो जाए। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा ड्रामे करता है, और लास्ट में क्या होता है कि परमेश्वर जो है उसको ऐसी सज़ा देता है कि वो अपने सुनहरे बालों के कारण ही झाड़ी में अटक के मर जाता है। तो हम देखते हैं कि जेलसी का परिणाम अच्छा नहीं होता है, और जेलसी हमें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, अभी हम देखते हैं कि कितने लोग जो हैं क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, और कितने लोग जो हैं उनसे जेलसी करते हैं, जबकि क्रिश्चियन कुछ बुरा नहीं करते हैं, और वो लोग इतने शांति प्रिय होते हैं, इतने जॉयफुल होते हैं, इतने ज़्यादा खुश रहने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, जो कि दुनिया भर में सारे अच्छे काम करते हैं, फिर भी दुनिया उनसे क्या करती है, जेलसी करती है, और जगह जगह उनको मारते रहते हैं, और जगह जगह जो है उनकी हत्या करते रहते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियन से जेलसी करते हैं। तो ये जेलसी जो है वो बहुत बुरा रूप ले लेती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसका एक अच्छा रूप भी है। वो अच्छा रूप अभी तक हमने बुरे साइड, सिक्के के बुरे साइड देखे, अब हम दूसरे सिक्के के दूसरा साइड देखते हैं जो कि अच्छा साइड है, और उसमें हम देखते हैं कि गॉड की जेलसी, परमेश्वर की जो ईर्ष्या है वो भी है। और परमेश्वर की ईर्ष्या कैसे है वो हम वचन में से ही देखेंगे। वो लिखी है व्यवस्था विवरण 4:24 में, व्यवस्था विवरण 4:24 में उसमें ऐसा लिखा है, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज कंज्यूमिंग फायर अ जेलस गॉड। इसमें ये लिखा कि परमेश्वर जो है वो एक जलती हुई आग के समान है, और वो बहुत ही क्या है, ईर्ष्या वाला परमेश्वर है। और वो ईर्ष्या क्यों करता है, आप सब जानते हैं कि जब हम किसी दूसरे गॉड की, किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं, तो हमारे सच्चे खुदा को, जिंदा खुदा को ये बात बिल्कुल नहीं भाती है, और वो फिर जो है वो उनको सज़ा भी देता है, जो उसको छोड़ के दूसरे गॉड के पास चले जाते हैं। जैसे जब मूसा पहाड़ी से उतरता है 10 कमांडमेंट्स लेके, तो उसने देखा कि एरन के साथ साथ सारे इजरायली लोग जो हैं वो बैल की पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने अपने सोने चांदी से बैल की पूजा करना शुरू कर दिया है। और इस जगह पे मूसा को इतना गुस्सा आता है कि वो 10 कमांडमेंट्स की जो स्लेट होती है उसको वो फेंक देता है, वो टूट जाती है। और गॉड को भी बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी प्रजा जो है वो किसी और गॉड को माने। वो चाहता है कि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, इंसान को उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है, और अपनी ही पूजा के लिए बनाया है। तो अगर हम इंसान जो है किसी दूसरे गॉड की पूजा करेंगे तो गॉड को ये बिल्कुल नहीं भाएगा। तो हमने बाइबल में कई जगह देखा है कि गॉड ने इजराइलियों को बड़ी से बड़ी सजाएं दी, उनको पूरा ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा दूसरे गॉड्स की आराधना करने लगे थे। तो इस तरह से वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और कई बार लिखा हुआ है कि गॉड जो है वो एक जेलस गॉड है। और वो जेलस गॉड क्यों है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी और की पूजा या महिमा करें। फिर 2 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 में आइए देखें हम क्या लिखा है। फॉर आई फील अ डिवाइन जेलसी फॉर यू सिंस आई betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to God। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियंस को कि गॉड जो है वो जेलस है, क्योंकि
वो नहीं चाहता कि हम उसकी प्रजा जो है वो किसी और गॉड के पास जाए, क्योंकि वो चाहता है कि वो पवित्र रहे और पवित्र वर्जिन के जैसे हो, एक कुंवारी के जैसे हो, जो कि उससे मिलने के लिए तैयार रहे, जीसस क्राइस्ट से मिलने के लिए तैयार हो, जैसे हमने की बाइबल में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो गॉड है अपने आप को, परमेश्वर अपने आप को हमारा क्या समझता है, हमारा पति समझता है, और हम सब उसकी दुल्हनें हैं। जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हनें हैं, और वो नहीं चाहता कि दुल्हन के अंदर कोई भी अपवित्रता हो। वो अपनी दुल्हन को सुंदर और पवित्र देखना चाहता है। तो इसलिए जब हम किसी और गॉड की आराधना करते हैं तो गॉड को ये बात कतई नहीं भाती है। फिर हम डिट्रॉनमी 7:7-8 में अगर देखें, डिट्रॉनमी 7:7-8 में देखें तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है कि गॉड क्रिएटेड अस टू बी इन रिलेशनशिप विथ हिम। मतलब गॉड हमारे साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है, और इसलिए वो हमको अपने पास रखना चाहता है, अपनी तरफ रखना चाहता है। फिर एक्सोडस में लिखा है कि तुम किसी भी देवी देवता के सामने अपना सिर नहीं झुकाओगे, और ये सच है। और साम 78:58 में लिखा है, फॉर दे प्रोवोक्ड हिम टू एंगर विद देयर हाई प्लेसेस। मतलब इजराइट्स ने क्या किया, गॉड के गुस्से को भड़का दिया जब उन्होंने ऊपरी स्थानों में मूर्तियों को बनाया और उनकी पूजा करी। तो गॉड का गुस्सा जो है वो भड़क गया, और उसने कई तरह से उनको सजाएं भी दी। और उसने इस वाली क्रिया को क्या बोला कि तुम जो हो एक वैश्या के समान, एक सच्चे पति को छोड़कर दूसरों के पास जाते हो और वैश्यागिरी करते हो। तो गॉड को इतनी बुरी ये बात लगती है कि अगर उसको छोड़कर लोग किसी और के पास जाएं। तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम किसी और के पास जाएं, या दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो गॉड से ज़्यादा उत्तम हमारे लिए हो। गॉड चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, और हम जाने कि उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, तो हम हमेशा उसकी महिमा करते रहें। तो आज हमने देखा कि ईर्ष्या क्या होती, जेलसी क्या होती है, और जेलसी से क्या क्या परिणाम होते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छी एक अप्रोप्रिएट स्टोरी देखी जेनेसिस 4 से, कि कैन और एबल, कैन को कैसे जेलसी थी, उसका क्या परिणाम हुआ। तब उसके बाद हमने रेचल एंड लिया का देखा, फिर जोसेफ का देखा, और कई इन सब स्टोरीज में हमने देखा कि जेलिसी के कारण बहुत बुरे परिणाम हुए। और फिर लास्ट में हमने देखा कि गॉड भी एक जेलस वाला गॉड है, लेकिन उसकी जेलसी जो है वो धर्मी है, उसकी जेलसी अच्छी है, क्योंकि वो हमको इधर उधर भटकने नहीं देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बने और उसी की महिमा हमेशा के लिए करें। So I hope that this passage was very good for us. It gave me lot of strength and lot of knowledge, and it will give you also. It must have given you also lot of knowledge and strength. So now let us pray. हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहे। और होली स्पिरिट, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी अगुवाई की और हमको इस लायक बनाया कि हम आपके वचन को सबके साथ बांट सकें। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सब के साथ होना, उन सबको अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स देना प्यारे प्रभु जी, उनको माला माल करना, हर तरह से उनके साथ होना, उनकी बीमारियों से उनको दूर रखना प्यारे प्रभु, उनकी हर चीज़ की पूर्ति करना, जिस चीज़ की कमी है प्यारे प्रभु उनके साथ होना प्यारे प्रभु, उनकी हर कमी को दूर करना, और अपनी निगरानी में उन्हें रखें और उनके स्वास्थ्य को, सबके स्वास्थ्य को अच्छा रखें प्यारे प्रभु जी। हम ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके भी साथ होना प्यारे प्रभु, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और हम
पास्टर विनय और विनी जय के लिए प्रार्थना करते हैं, जो शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहे। उनके ऊपर आपकी बहुत आशीष हो। और जो लोग पीछे से देख रहे हैं, जिनके नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं, बट दे आर वॉचिंग, लॉर्ड ब्लेस देम ऑल्सो। एंड जो बाद में इस मैसेज को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी बहुतायत से अपनी आशीषें दीजिए। अब हमारे भी साथ होइए, हमारे परिवार के साथ होइए, सबको ब्लेस करिए। और इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, स्पेशली पास्टर विनय जोसेफ को, जिनका नाम अभी तक आ रहा है स्क्रीन पे, और बहन विनी जय को भी धन्यवाद देती हूँ, और वो भी हमारे साथ बनी रही। और बहुत से लोग होंगे लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और अब हम चलते हैं, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। और हम खुदा ने चाहा तो हम फिर मंगलवार को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।